morning and welcome to today's class. Today we have to take a new part of your nuclear physics that we call as our radioactivity. Okay, so far we have seen that is what are the different types of nuclear forces, what is nuclear fission, fusion, etc. And now after undergoing all such things, we have to discuss today what is radioactivity. ये radioactivity क्या है? Now there are some substances which can have a natural tendency to decay itself, decay a bigger one into smaller one. I won't say just divide into mechanically divide into two parts, three parts, like a slashing of something into pieces. No, it is a very spontaneous process, automatic process. अपने आप से जो है कुछ substances जो है कुछ रेडिएशन निकाल के कुछ पार्टिकल्स निकाल के वो अपने आप को एक नया न्यूक्लियस बनाते रहते हैं. ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना जो 1896 में बैक्यूरेल ने निकाला था. Okay, what he did actually, he used certain type of substance and he wrapped that in black paper. So black paper से wrap कर दिया and then he placed that paper, that bundle with a copper obstacle and a photographic plate. And after some time, when he took out the paper or photographic plate, he observed some certain black patches were there. That means there is at least something which can radiate from that substance which was wrapped by black paper, and that can penetrate not only the black paper but also the copper, but also the silver plate. ओके, कॉपर ने सिल्वर प्लेट रखा था तो इनसे पेनिट्रेट करके निकलता. तो ये एक नया टाइप का फिनोमेना उन्होंने दिखाया एंड दैट ही कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, सम साइट ऑफ रेडिएशन. बाद में देखा गया कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, कुछ पार्टिकल्स भी है. So what is radioactivity and what are the definitions of it? I was to discuss it first. Okay, let us see. This is radioactivity, and what is that state? That can very easily give you that it is a nuclear process of certain type of atoms in which nucleus of an atom is spontaneously disintegrated by means of emission of one or more radiations, okay, like alpha, beta or gamma rays. And such types of atoms are called radioactive atoms, and corresponding phenomena is called radioactivity. Always remember, this is a very peculiar phenomena. Okay, and that was in fact discovered in 1896 by Becquerel. Okay, who discovered that thing? That was in fact that was discovered by none other than Becquerel. Okay, that he was the person who actually established everything, and later it was combined work of this Curie couple, Pierre and Madame Curie. They also took the same effect, and they did further, and ultimately in 1903 all the three all the three were the recipient of Nobel Prize for radioactivity. A totally new phenomena. ठीक है, तो अब ये रेडियो एक्टिविटी में कैसे क्या बनता है ये हमको मालूम होना चाहिए. दैट वी हैव टू नो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. Now, one thing I must tell you that in radioactivity, actually there are three particles, three types of things which are emitted from a nucleus of such substance, which we call as radioactive substance. तो अब वो कौन कौन से चीज निकलता है? That they are alpha, beta, and gamma. Very simple. That gamma is nothing but it is simply a charged particle. Alpha is alpha is a charged particle. Beta is also a charged particle, but gamma is a photon radiation. Gamma एक photon radiation है, ये याद रखिएगा. So that means whenever we discuss such thing,
then we must know what are the comparative study of the three, that is अल्फा बीटा गामा. देखिए एक चीज बहुत सिंपल है कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये एक हीलियम न्यूक्लियस के बराबर मानते हैं हम लोग. ठीक है, इसके मास ऐसा वैसी है. In the same way, it has two electron positive charge, two plus 2e, and it has a very strong, in fact, ionization power, etc., etc., and it has very strong photographic effect, photographic plate effect, and it has weakest penetrating power. पेनेट्रेटिंग पावर के पॉइंट से वीकेस्ट होता है, बट आयोनाइजेशन पावर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. अल्फा पार्टिकल इज चार्ज पार्टिकल, therefore it is deflected in electric and magnetic field. बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, और जहाँ की आपका जो बीटा जो पार्टिकल होता है, which is basically electron but which is of nuclear origin. जो न्यूक्लियस के अंदर से जैसे लगता है कोई इलेक्ट्रॉन निकले, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, जो कि एटॉमिक फिजिक्स में हमने देखा है. लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बीटा पार्टिकल के रूप में, दे आर एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस. वो सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता, हर एक में नहीं होता. अच्छा, इसके साथ साथ जो गामा होता है, इट इज जस्ट अ फोटोन. ये रेडिएशन जैसे होता है, ये अल्फा के साथ भी निकलता है और बीटा के साथ भी निकलता है. लेकिन कभी कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा अभी तक नहीं मिला जिसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एक साथ निकलता है. एक साथ नहीं निकलता. अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो नेचुरली इसका मास जो है, मास नंबर इज रिड्यूस बाई 4, एंड बीटा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर इज देयर इज नो चेंज इन मास नंबर, बट एटॉमिक नंबर इज एनहेंस्ड बाई 1. एक बीटा निकलने से एक आप ये समझ लिया कि एटॉमिक नंबर में एक नंबर की बढ़ोतरी होती है, और एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 नंबर कम हो जाता है, 2 माइनस हो जाता है. ठीक है, ये सब तो बताएंगे. तो अभी पहले हम लोग लेट अस सी व्हाट आर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. लेट अस सी. All the points have already been covered. The first is nature. It is nature is alpha particle में क्या है, helium nucleus, electrons of nuclear origin, and this is electromagnetic rays or radiation. Second one is mass. It is 6.67 into 10 to the minus 27 kg, or 4 of AMU, or 4 of mass of proton. ये क्या होता है, इसका मास 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन. ये मास, रेस्ट मास इज 0. Now it is the next one is charge. It is plus 2e. It is minus e. It has no charge. Gamma has no charge. Then it is the ionization power. It is 10 times of gamma. ध्यान से देखिएगा. It is 10 to the power 4 times of that of gamma. ये है आपका अल्फा पार्टिकल का, और ये है बीटा पार्टिकल का है. It is around 10 to the power 2 times of that of gamma, and for gamma it is minimum. आयोनाइजेशन पावर गामा का मिनिमम होता है. ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको पेनिट्रेटिंग पावर की बात करूंगा, इफ वी सी द पेनिट्रेटिंग पावर, and then we can see penetrating power is minimum for alpha, and it is 10 to the power 2 times of that of alpha, and it is 10 to the power 4 times that of your alpha. This is your maximum is for gamma. पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है. फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, and that is strong in case of gamma, strong in the case of alpha, and it is a little bit less in case of beta, and there is no effect in case of your this one, that is gamma rays. तो गामा रेस में इस तरह हमने देखा कि कोई फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई भी तरह से
आपका इफेक्ट नहीं होता है। तो ये एक जनरल आपको व्यू दिखा दिया कि व्हाट आर द डिफरेंट comparative study. And if we consider the speed of gamma is definitely that of speed of light, that is 10 to the power 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड गामा सबसे ज़्यादा होता है। और जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इसका स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम होता है। ये 3 इंटू 10 टू द 8 ना होगा, अप्रोक्सीमेट 10 टू द 8 होता है मीटर पर सेकंड। For alpha particle, it is almost 1/10 of that of speed of light. So 1/10 or even less. Okay, 1/10 of speed of light से थोड़ा कम होता है, ये होता है। अगर इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट बिकॉज इट इज चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट बिकॉज इट इज चार्ज पार्टिकल, पर गामा विल हैव नो डिफ्लेक्शन। इसमें कोई डिफ्लेक्शन किसी तरीके से नहीं होगा। तो इसके आगे हम लोग कुछ और देखें तो हम लोग जो इसके बाद जो हम लोग जो मेन चीज जो हम लोग देखते हैं कि दैट इज व्हाट आर द अदर थिंग्स, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लाइक द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये रेडियो एक्टिव डीके किस तरीके से होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। और हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले थे, जो मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी हमने कर लिया, अल्फा बीटा गामा वी हैव ऑलरेडी स्टडी हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। साथ में हम लोगों ने ये भी कहा कि अल्फा और गामा एक साथ निकल सकते हैं या बीटा और गामा एक साथ निकल सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला जहाँ अल्फा और बीटा एक साथ निकले, ठीक है। तो खाली खाली बीटा निकल सकता है, दैट इज पॉसिबल, या खाली अल्फा निकल सकता है, खाली गामा निकल सकता है स्पेशल केसेस में। बट बेसिक पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक जो एमिशन होता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसमें तीनों एक साथ नहीं निकलता है, या अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलता। एक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जब देखते हैं डीके वाला, मैंने एक चीज और आपसे कहा कि व्हेन वी हैव द अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, suppose we are having one thing, that is alpha particle is emitted from one substance X. So new substance will have atomic number less by 2 and mass number less by 4। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। If we emit an alpha particle from our nucleus, then the new nucleus we have atomic number less by 2 एंड मास नंबर लेस बाई 4, यानी कि उसका मास जो एटॉमिक मास वो 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है अल्फा पार्टिकल निकलने से। और कुछ हम लोग नहीं देखते। बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास, बट ओनली मास नंबर इज एनहेंस, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाई 1, ये ध्यान रखना। उसके साथ डेफिनेटली एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है, वो एक सब न्यूक्लियर पार्टिकल है, वो हम लोग उसको डिटेल अभी हम लोग के इसमें नहीं है, दैट वी हैव नॉट टू डिस्कस राइट नाउ। मेन थिंग व्हाट इज देयर फॉर सीबीएसई सिलेबस, दैट वी हैव टू टेक ओनली। Okay, the next is a radioactive decay law or the Rutherford and Soddy's law that we have to discuss. What is that law? Let us see. This is your radioactive decay law. This is also sometimes called as Rutherford and Soddy's law. Rutherford and Soddy's लॉ, ये भी वर्ड इसको कह देते हैं, या सिंपली हम लोग रेडियोएक्टिव लॉ डीके लॉ पूछ देते हैं। होता क्या है, द रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके, radioactive nuclei present in the substance at that instant. फॉर एग्जाम्पल किसी के स्टार्टिंग में खूब सारे न्यूक्लियस है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं 5:05 में अगर मैं देखना चाहूँ उस समय रेट ऑफ डीके क्या है, तो उस समय अगर 25 न्यूक्लियस बचे हुए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट 25। ये चीज खास है, मतलब उस समय का जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड एंड सोडिस लॉ। तो इसके हिसाब से क्या रेट ऑफ डीके को हम लोग कैसे लिखेंगे, dN/dt with minus sign,
is directly proportional to what? Is directly proportional to we have said that is n. n के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये चीज हम लोगों ने कह दिया। अच्छा, अब अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हम हटाना चाहे तो व्हाट वी डू, वी हैव टू हैव कांस्टेंट लैम्डा एन। तो डी एन अपॉन डी टी विथ माइनस साइन इक्वल टू लैम्डा एन। अगर मैं एन को इधर ले आऊँ और डी टू इधर ले आऊँ, वी हैव डी एन अपॉन एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, ये आ गया। ऑन इंटीग्रेटिंग we have 1 by n dn equal to minus lambda dt like this। तो अब हमको यहाँ पे मिल जाएगा log n to base e इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा। कैसे होगा कि अगर टी टाइम इक्वल टू जीरो होगा तो अनडिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा, जिसमें डिके होने ही स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें एन जीरो था। तो द स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। तो एट टी इक्वल टू जीरो n equal to n0, therefore equation 1 becomes log n to base e equal to minus lambda और lambda into 0 plus c। तो ये n0 हो जाएगा, therefore c equal to log n0 upon e। This is your equation number 2। From 1 and 2 we have log n upon log n minus log n0 both with base e equal to minus lambda t। In general we have log n upon n0 to base e equal to minus lambda t, ये आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो n अपॉन n0 हो जाएगा, ये जो बेस ये इसका पावर में हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। तो n इक्वल्स टू n0 e to the power minus lambda t। This is what we have the Tickle law और the Rutherford and Soddy's law। ये रदरफोर्ड एंड सोडिस लॉ का डेफिनेशन है और इसका डेरिवेशन भी है, और व्हाट वी कॉल रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ओके, by this we can very easily determine that the number of nuclei present at any instant t is given by n0 times e into e to the power minus lambda t। माइनस लैम्डा टी, लैम्डा क्या है? लैम्डा है आपका दिस इज योर डी के कांस्टेंट। ये लैम्डा जो आपको दिखता है कांस्टेंट बार बार हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर दिस लैम्डा इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट, और इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते थे, दोनों ही नाम इसका है। ये जो लैम्डा कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी आपको दिख रहा है, that we call as decay constant or disintegration constant। That is in fact a very important point for calculating many things like half-life period and mean life period, etc. Okay, that we have to discuss just now. Yes. Now, before we discuss half-life period or mean life, we have to discuss at least some very fundamental thing like what are the units which are very relevant in radioactive substances or in case of radioactivity. And Rutherford have done something. Becquerel have done the pioneer thing, and then Curie also forwarded the same work. Therefore, all the three scientists had their names with some corresponding units that we have to discuss first, and also we must know what is the meaning of activity of radioactive substance। देखिए, अभी जो रदरफोर्ड सोडिस लॉ हमने बताया था
dn upon dt, that is rate of disintegration. So rate of disintegration of any radioactive substance itself is called as radioactive activity of radioactive substance. और जैसे हम लोग फॉर्मूला डी के फॉर्मूला लिखते हैं कि n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो वहाँ पर हम लोग एक्टिविटी के टर्म निकलेंगे r इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, where r is the disintegration constant. Remember, r is the activity of that substance. Okay, let us study what are the units first. These are the units. Number one is becquerel. 1 decay per second is called 1 becquerel. 1 curie equal to 3.7 into 10 to the power 10 decay per second, यानी कि 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. becquerel को हम लोग छोटे से b क्यूब b और छोटा क्यूब भी लिखते हैं. Then is Rutherford. 1 Rutherford equal to 10 to the power 6 decay per second, that we call as 10 to the power 6 becquerel, like this. Okay. Next come is that is the decay. What we call radioactive activity of radioactive substance. From the rate of decay of any radioactive substance is called as activity. और इसके लिए corresponding formula ये होता है R equal to R naught e to the power माइनस लैम्डा टी. ये बिल्कुल वैसी फॉर्मूला है जो कि रदरफोर्ड एंड सोडिस लॉ में हम लोग ने देखा था. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका हाफ ये आपका जनरल इक्वेशंस. अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? व्हाट इज हाफ लाइफ? जो नाम से मतलब है, ये वो टाइम होगा जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा मास जो है गायब हो जाता है. गायब हो जाता है, मैंने डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दूसरे दुनिया में चले जाते हैं. एक पहले किसी के पास किसी का कोई 40 किलो का कोई आदमी था, वो कुछ देर रुका और मालूम पड़ा कुछ दिन बाद वो 20 किलो का हो गया. तो जिस टाइम वो 20 किलो का हो गया, उस टाइम को हम उसको कहेंगे उसका व्हाट वी कॉल हाफ लाइफ पीरियड. लेकिन हाफ लाइफ पीरियड हर जगह तो नहीं यूज होता. इंसानों के इसमें से स्पॉन्टेनियस वे में, सिस्टमेटिक वे में नहीं होता, जैसे कुछ सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में होता है. तो इसलिए उनके लिए हम लोग स्पेशली स्टडी करते हैं, न कि हम आपके लिए, ना हमारे लिए ना आपके लिए. ओके, दैट वी हैव टू डिस्कस. दैट इज द टाइम इन विच almost half of the total initial radioactive nuclei is disintegrated in certain time duration, that we call as a half-life period. The next we discuss as the half-life period. That is, it is a time interval in which one half of the radioactive nuclei originally present. A time point to be noted. It is originally present in radioactive sample uh, disintegrate. मतलब जो ओरिजिनली जितना प्रेजेंट था वो उसका हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एन था एन जीरो था तो एन जीरो बाई टू हो जाता है. इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड and it is denoted by T and half. So after this we have to see that how we derive this formula for half life period. Let us see that we have to adopt the same very method in which we use the derivations of our uh, Rutherford and Soddy's law. उसी टाइप से मिलता जुलता इसमें भी कुछ होगा. तो we have to take the expression for half life period. So for that from radioactive decay law n equal to n0 e to the power minus lambda t. Either t is any time है. If t is t half life period, तो उस समय हाफ लाइफ पीरियड अगर हो तो आप उस समय n कितना हो जाएगा? n0 by 2. तो ये ओरिजिनल था बिफोर डीके. So here we have n0 by 2 equal to n0 e to the power minus lambda t, and after this n0 n0 cancel हो जाएगा. 2 to the power minus 1 equal to e to the power minus lambda t. माइनस वन भी माइनस भी कैंसिल हो गया. lambda t, taking log on both sides, we take log 2 to base e, log 2 to base e and log e to the power lambda t to base e. तो e दोनों जगह है तो खाली lambda t आ जाएगा. सॉरी, ये t by 2, यहाँ पर t क्या है? T is your t half. This is also t half because this is we have to have half life period. T half.
टी हाफ, ये तो ये चीज बचा आप देखिए। तो लॉग तो टी हाफ सिंपली क्या हो जाएगा, व्हाट इज टी हाफ, इक्वल टू टू log 2 टू बेस ई अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला बचा। एंड log 2 टू बेस ई जो होता है यानी एक्सपोनेंशियल log 2 है, तो इसका वैल्यू होता है 0.692 अपॉन लैम्डा। तो हाफ लाइफ पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया। और ये भी देखते कि हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी के कांस्टेंट। जितने ज़्यादा डी के कांस्टेंट होगा उतने हाफ लाइफ पीरियड कम होगा, जितने कम डी के कांस्टेंट होगा उतने ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड होगा। और एक चीज़ और बता दें, कोई भी सब्सटेंस का जितने ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड होगा वो न्यूक्लियर उसका उसका न्यूक्लियस उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लार्जर द half life period, greater will be the stability, nuclear stability। अगर मान लो कि कोई भी हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम की जगह 2 ही सेकंड, तो अभी तो 1-2 सेकंड पहले कुछ था, 2 सेकंड बाद कुछ और होगा, अगले 2 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगा, तो इसको आपको पता ही नहीं लगा था, तब से पहले बदल गया सिस्टम पूरा। लेकिन किसी का अगर माना 10 साल है, तो 10 साल के बाद उसमें चेंजेस आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसके का मतलब जितने ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो ये तो एक जनरल हो गया हाफ लाइफ पीरियड का, एक एक एक्सप्रेशन भी आपके आ गया। तो अब ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो बहुत एक्सपोनेंशियली डाउन होता है। आप देखिए हमेशा जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मेट में होता है, इस फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप ये समझ लीजिए एक ग्राफ खींचा जाए कि नंबर टाइम और नंबर ऑफ रेडियो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, तो इनके भी जब ग्राफ खींचे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एन है मान लीजिए, और ये टी है, और सॉरी स्मॉल टी। तो इनके भी अगर एक ग्राफ खींचे तो इस टाइप का ग्राफ आपका आएगा। और इसमें आप खास बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये तो मैक्सिमम जब जीरो टाइम में कहा था वो n0 था, n0 था। तो हाफ लाइफ पीरियड जब यहाँ पर होगा तो इस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा n0/2। उसके नेक्स्ट जो हाफ लाइफ पीरियड होगा यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड ये t1/2 2t/2 हाफ जो होगा इस समय हो जाएगा आपका n0/4। अगला हाफ लाइफ पीरियड में हो जाएगा n0/8, ऐसे बढ़ता चले जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली लेकर डीके होता है। द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस and time, if we draw a graph between them, then we always see that with time, with the increase of time, the number of radioactive nuclei present in that substance decays exponentially like this. Okay, so this is a very important variation, graphical variation of the radioactive number of radioactive nuclei present in the substance and the time। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आप देखते हैं कि वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहेगा वो कम होता जाएगा। देखिए धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखिए बिल्कुल मैक्सिमम था टाइम जीरो पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, थर्ड हाफ लाइफ पीरियड, सो ऑन। तो ये चीज होता जाएगा। तो इसको एक जनरल मैथमेटिकली अगर देखें तो n इक्वल टू n0 1/2 होल टू द पावर n, मैं एक फॉर्मूला के फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। इफ वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, जिससे न्यूमेरिकल में बहुत इजी पड़ता है इस फार्मूला को यूज करने से। ये क्या है, एन क्या है, ये नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। n0 इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बिफोर डीके, एंड दिस इज हाफ। ये n क्या है, n इज द टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा इसको हम लोग एन कहेंगे, या दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बात एक ही है।
अगर मान लो कि किसी का हाफ लाइफ पीरियड 10 है, ये 40 लिखा हुआ है, तो 40/10 मीन्स 4, तो यहाँ पे n टू द पावर 1/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी जो बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 4, दैट इज 16, n0/16 टर्म बचेगा इसमें n। उस समय का जो नंबर ऑफ जो जीवित बचेगा न्यूक्लियर अनडिकेट, दैट विल बी n0/16, अगर n के वैल्यू 4 हो तो, यानी कि जैसे मैंने कहा टोटल टाइम है जैसे 40 आवर्स एंड हाफ लाइफ है जस्ट 10 आवर्स, then naturally what we have n, that is equal to total number of half life period is 4, and here we put 4. So after 4 half life period we are left with n0/16 nuclei present in that substance. तो एक तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि हाउ वी डिटरमाइन हाफ लाइफ पीरियड। तो इसी तरीके से एक हम लोग जनरल फॉर्म में भी कह सकते हैं कि हाउ वी डिटरमाइन मीन लाइफ। एक मीन लाइफ का भी छोटा सा होता है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली इट इज द सम ऑफ, जिसको हम लोग ऐसे ड्रॉ से लिखते हैं, व्हाट वी राइट, सम ऑफ लाइफ ऑफ all the nuclei divided by total number of nuclei। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोग मेन लाइफ निकालने के लिए सब लोग का लाइफ जोड़ जोड़ ले। एक क्लास में मान लो कोई 16 साल का, कोई 16 साल 10 महीने, कोई आपका 17 साल का, कोई 16 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो सबके अगर सम एक साथ जोड़ ले और उसका एवरेज निकाले तो वो हो जाएगा हमारा मीन लाइफ ऑफ दैट मीन एज। तो भाई इसी तरह से अगर सारे न्यूक्लियाई एक सब्सटेंस जो सैंपल लिया, सारे न्यूक्लियाई का हम लाइफ को जोड़े और उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर दे, तो वी कैन गेट द एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। मीन लाइफ इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, it is also represented as inverse of decay constant. It is inverse of decay constant और reciprocal of decay constant। तो आपको मालूम है द फॉर्मूला हमारा क्या होता है हाफ लाइफ का, 1/2 इक्वल टू 0.693 होल अपॉन डीके। 1/dk constant equal to what we write, 1/dk constant equal to 0. यहाँ पर जो हो जाएगा, यस, हाफ लाइफ अपॉन 0.693। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.44 हाफ लाइफ, यानी कि टॉ इक्वल टू 1.44 टी हाफ। This will be our formulation, that is the relation between the mean life and that of our half life। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपने मीन लाइफ हाफ लाइफ में रिलेशन देख लिया, और आपने ये भी देखा कि कैसे डी के कॉन्स्टेंट जो होते हैं that is inversely proportional to your half life, और half life is inversely proportional to decay constant। वो भी हम लोग ने देखा था, बिकॉज 0.693 अपॉन decay constant हम लोग लिखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड लिखते हैं। और हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या रिलेशन होता है, आपने देखा मीन लाइफ हाफ लाइफ से ज़्यादा होता है, 1.44 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि एवरेज लाइफ हमेशा हाफ लाइफ जिसका टोटल सिंपल का होगा उससे ज़्यादा होगा। With that, we have completed today's lecture, and this is all about the radioactive whatever is there in the CBSE syllabus. With that, we have completed. Hope you have enjoyed the video. Please take care of yourself and do study it and see the video repeatedly, so that the concept of mathematical thing will also be clear. Okay. With that, we have completed today. Thank you.